وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پولیس کی مدد کرے گی۔ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لوگوں نے احتیاط نہ کی تو سب کچھ بند کرنا پڑے گا۔ مثبت کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو ہسپتالوں پر بوجھ بڑھے گا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک استعمال کریں۔ عوام پر مزید ٹیکس کے بجائے ریلیف کے لیے آؤٹ آف باکس حل تجاویز، جبکہ معاشی استحکام اور پائیدار گروتھ کے لیے روڈ میپ پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایات۔ ملکی معیشت کے حوالے سے اس اکنامک ایڈوائزری کونسل کی مکمل طور پر فعالی کو یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اے اور او لیول کے طلباء کی فزیکل امتحانات کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائیداد نیلامی کا حکم جاری کر دیا۔ نیب راولپنڈی نے پیٹرول بحران کی تحقیقات شروع کر دی۔ سیکریٹری پیٹرولیم سے پیٹرول انکوائری کمیشن کی مصدقہ رپورٹ 26 اپریل تک طلب کر لی۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت نے مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ 5% سے زائد کیسز والے علاقوں میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب ہاؤس مری کوہسار یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا۔ کوہسار یونیورسٹی کے قیام کا مقصد سیاحت کا فروغ اور تربیت یافتہ افرادی قوت پیدا کرنا ہے۔ کوہسار یونیورسٹی مری کا بین الاقوامی یونیورسٹی سے الحاق کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ کوہسار یونیورسٹی مری کا بین الاقوامی یونیورسٹی سے الحاق کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم صرف ٹورزم کی ترقی سے ملکی قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم برآمدات سے کہیں زیادہ سیاحت کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے ملکی معیشت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر مری پہنچے، جہاں انہوں نے کوہسار یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام موجود تھے۔ کوہسار یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ٹی بی سینیٹوریم کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کیا۔ یونیورسٹی کے قیام کا مقصد سیاحت کے شعبے میں تربیت یافتہ افرادی قوت پیدا کرنا اور مری میں سیاحت کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پولیس کی مدد کرے گی۔ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لوگوں نے احتیاط نہ کی تو سب کچھ بند کرنا پڑے گا۔ مثبت کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو ہسپتالوں پر بوجھ بڑھے گا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک استعمال کریں۔ قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کے اجلاس سے وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ شہری ماسک کا استعمال ضرور کریں، ماسک پہننے سے آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں وہ حالات نہیں جو ہندوستان میں ہیں۔ بھارت جیسے حالات ہو گئے تو شہر بند کرنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں، لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مزدور اور غریب طبقہ متاثر ہوگا۔ ہماری مساجد میں ایس او پیز پر عمل ہوا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ 5% سے زائد کیسز والے علاقوں میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے شہباز شریف کی ضمانت کے آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے ضمانتی مچلکے احتساب عدالت میں جمع کروائے۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف کی جانب سے جمع کروائے گئے مچلکوں کا جائزہ لے کر ان کی رہائی کی روپکار جاری کی، جس کے بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو گزشتہ برس ستمبر میں حراست میں لیا تھا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں ترک وزیر خارجہ کی دعوت پر افغان امن عمل کے حوالے سے منعقدہ سہ فریقی اجلاس میں شرکت۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی مخلصانہ مصالحانہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अफगान मसले से मुंसलिक तमाम फ़रीकीन को संजीदगी और तामीरी किरदार अदा करना होगा। इस तहरीकी इजलास में इक़्तिसादी ताउन, रवाबित के फ़रोग़, इलाकाई अमन को दरपेश ख़तरात और अफगान मुहाजिरीन की बावकार वापसी से मुतल्लिक़ा अमूर पर भी सिरहासिल गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान में देरपा अमन का क़याम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तमानियत का बाइस होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते के अंदर और खित्ते से बाहर रवाबित के फ़रोग़ की नई राहें खुलेंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए इदारा जाती सतह पर ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस मौका पर हमें अफगान मुहाजिरीन की बावकार और वक्त तयन के साथ वतन वापसी के लिए एक काबिल अमल और जामे मनसूबा मुरत्तिब करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की जाने वाली आलमी काविशों में शरीक रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का क्लाइमेट लीडर समिट से खिताब। मामून ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम ने वीडियो लिंक के जरिए समिट में वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी की। हालात बदल गए, अब पाकिस्तान ने दुनिया से डू मोर का मुतालबा कर दिया। मलिक अमीन असलम का मुतालबा, अब वक्त आ गया है बातों के बजाय माहौलियाती चैलेंजेस का अमली मुकाबला किया जाए। माहौलियाती चैलेंज से निमटने के मामले पर भी डू मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे के तहत सरफहरिस्त मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली के लिए कोशिशों पर अमली यकीन रखते हैं। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं के राब्ते सामने आ गए हैं। चौधरी सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने का वादा कर लिया है। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली राजा फयाज और सूबाई वुज़रा अजमल चीमा, ख्याल अहमद और दीगर ने मुलाकात की। राजा फयाज और दीगर ने गवर्नर पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। चौधरी सरवर ने यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आप लोगों की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करूंगा। पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मौजूदा हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। कमजोर और गरीब तबके के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ए और ओ लेवल के तुलबा की फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी दरखास्त कैम्ब्रिज के खिलाफ नहीं। कैम्ब्रिज ने 2 ऑप्शन दिए। सऊदी अरब, थाईलैंड, इंडिया ने फिजिकल के बजाय ऑनलाइन इम्तिहान के ऑप्शन को अपनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते, दरखास्त NCOC को भेज देते हैं। अदालतों का काम नहीं कि मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करे। आज तक कोरोना से मुतालिक जितने मामलात आए हैं हमने NCOC के पॉलिसी फैसलों में मुदाखलत नहीं की। वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान कैम्ब्रिज को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती। हुकूमत सिर्फ इन इम्तिहानात से मुतालिक यहाँ सहूलियात फराहम करती है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत इनको इम्तिहान लेने से रोक दे? आपकी पिटीशन में 9 दरखास्त गुजार हैं, हो सकता है बाकी हजारों फिजिकल इम्तिहान देना चाहते हों। 9 पिटीशन हजारों तुलबा की नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते। क्या बच्चे इम्तिहानात नहीं देना चाहते? कैसे तुलबा हैं जो इम्तिहान नहीं देना चाहते? अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की दरखास्त पर फैसले की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि जिन जायदादों पर एतराज नहीं आया उनकी फरोख्त का ऑर्डर दे दें। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नैब दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत से इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की दरखास्त पर फैसले की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि जिन जायदादों पर एतराज नहीं आया उनकी फरोख्त का ऑर्डर दे देंगे। नैब ने दरखास्त दी कि जायदाद जब्तगी के अहकामात को भी 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और नवाज शरीफ ने अभी तक जानबूझकर अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, लिहाजा कानून के मुताबिक मजाज इदारों को जब्त की गई जायदाद की नीलामी के अहकामात जारी किए जाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकूमत ने मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 5% से ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला भी कर लिया गया है।
कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास से वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 5% से ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। मुल्क भर में तमाम मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट में ईद तक इंडोर के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। ऑफिस टाइमिंग 2 बजे तक की जा रही है। लोग आखिरी दिनों का इंतजार न करें, ईद की तैयारियां करें। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि गुज़िश्ता साल जब गर्मियों में कोरोना की पहली लहर आई तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। हम पिछली कोरोना की लहर में मुस्बत केसेस की शरह से बहुत ऊपर जा चुके हैं। ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर दबाव ज्यादा है। हम 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल दूसरे रोज 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ गए। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कई मरीज हलाक हो गए। भारत कोरोना का गढ़ बन गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 17 तैयारों के जरिए ऑक्सीजन के कंटेनर्स की तरसील की गई है। नौशहरा में इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रमजान सस्ता बाजार से चीनी, घी और दीगर अशिया ज़रूरिया गायब। शहरी हाली हाथों वापस घरों को लौटने पर मजबूर। शहरियों का मुतालबा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाजार में अशिया खुरोनोश की कमी को पूरा किया जाए। इसी बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख के इस रिपोर्ट में। नौशहरा में इंतजामिया की जानिब से कायम किए रमज़ान सस्ता बाजार हुकूमती एदाद व शुमार बनकर रह गया है। नौशहरा के तीनों तहसीलों में कायम रमज़ान सस्ता बाजार से चीनी, घी, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया गायब होने की वजह से शहरी खाली हाथों वापस घरों को लौटने पर मजबूर हैं। हम चीनी के लिए आए थे और चीनी ले लिए। मेरा दूसरा दिन है, मैं आता हूँ, कोई चीज़ नहीं मिलता, ना चीनी है ना घी है। जब मिल भी जाता है तो वो थोड़े से ले आते हैं, वो भी मखसूस बंदों को मिल जाता है। ना सब्जी है, कुछ भी नहीं है इधर। हम तो आते थे चीनी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता। अब आए नो कहते खत्म हो। ये जो आटा बेच रहे हैं ये बाजार में 800 का बेचते हैं, इधर 860 का। शरबत में भी 2 रुपए का फर्क है, कुछ भी नहीं लेगा। लोगों को तकलीफ देना है। एक पैकेट चीनी देते हैं, जब लोग पहुंच जाते हैं तो सब लोग चीनी खत्म होती है। घी और चीनी वो मिलता नहीं। शहरियों का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाजार में अशिया खुरनोश की कमी को पूरा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शाहरुख। नौशहर और फिरोज के शहर मठियानी में आवाम इलाके की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कराची में अफगान मुहाजिरीन की तरफ से सिंधियों पर हमले के खिलाफ मठियानी के सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया है। तफसीलात के मुताबिक कराची की बिलाल कॉलोनी में अफगान माजरीन का सिंधी आबादी पर जदीद हथियारों से हमला किया गया, जिसके खिलाफ मठियानी में फियाज शेख, उर्स मशवारी, चाकर खान चांडियो और रहमान सुलंगी की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मठियानी यूथ कमेटी, सिंधी तरक्की पसंद पार्टी, जिसाफ, सताफ और इंसानी हकूक की तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध के बाशिंदों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल चाचमनी बखर में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हर साल की तरह इस साल भी पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए, जिसके मेहमान खुसूसी CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान थे। मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने मुख्तलिफ क्लासरूम्स का जायजा लिया और बाद अज़ां तकरीब से खिताब किया और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलाबात में इनामात भी तकसीम किए। डिचकोट में हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की जानिब से सस्ते बाजार का इनेकाद किया गया। शेख खुरोनोश की कीमतों में कितनी कमी हुई, देखते हैं उदास मलिक की इस रिपोर्ट में। जी माह मुबारक आते ही ज़िला इंतज़ामिया ऐसी सदर उमर मकबूल और मुबशर शहजाद चेयरमैन मार्केट कमेटी फैसलाबाद का डिचकोट में सस्ता रमज़ान का इनकाद अशिया खुरदनोश पर अमल को 50% सब्सिडी दे दी गई। हाँ जी भाई, बहुत अच्छिया चीज़ां मिलदियां, सस्तियां मिलदियां, ठीक होर असी बहुत शुक्रगुजार हाँ। ठीक है, सब कुछ ठीक मिल रहा वा। सारे मैरिट दे रही है तो कोई सिफारिश नहीं चल रहा। और तरवा के आटे का 10 किलो का ठेला वा ਉਹ 300 ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਬੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, 98 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਰਿਆਇਤ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜਾਵੇਂ, ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਉੱਦਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, 40 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਣ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 98 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ 65 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ 84 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਰਾਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਕਿਤੇ फैसलाबाद जाओ तो। डिचकोट रमज़ान बाज़ार में चीनी 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी। खुर्दनी तेल 230 रुपये फ़ी लीटर, दाल माश 290,
दाल मसूर 210, लोबिया 25 रुपये और दाल चना 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। शहरियों के चेहरों पर खुशी छा गई। काफ़ी मकदार में चीनी आती है हमारे यहाँ, सबको मिलती है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आ रही, यहाँ कोई मसला मसाइल पेश नहीं आ रहा है यहाँ। और भी चीज़ें काफ़ी हैं, सस्ती हैं, बाज़ार से बहुत कम रेट ले रहे हैं यहाँ। हुकूमत की ये पॉलिसी सस्ते बाज़ार वाली अवाम उन्नास के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है। अगर ये रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखी जाए तो इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। डिस्कोट में आटे का थैला 10 किलो का 375 रुपये और अवाम को हर वक्त मिसरा आ रहा है और मुर्गी का गोश्त 340 रुपये मिलने लगा। पहली रहनी आई हैं अज रमजान बाजार से देखा बहुत अच्छा जा रहा, मतलब हर चीज़ मिलती है, गरीबों का बहुत भला हो रहा, हर तरह की चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है जी। डिस्कोट के शहरियों ने एसी सदर उमर मकबूल और हुकूमत से सस्ता रमज़ान के बाहर भी एशिया खुर्दनोश की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना साकिब के साथ अदास मलिक, 51 न्यूज़, डिस्कोट। कसूर थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, चौकी इंचार्ज लाली अड्डा के एएसआई मेहरुल्लाह ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर मजीद अपडेट भी लेते हैं नुमाइंदा कसूर सैयद अली जैन से। जी जैन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर उमरान किशोर की सूची हिदायत पर थाना ए डिवीजन पुलिस ने एसएच जमाल सिंह की सरबराही में एएसआई मेहर अल्लाह हुसैन ने कार्रवाई करते हुए शहर कसूर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके मुलजिमान की कब्जे से लूटा के लाखों में मालिक का माल मुसलका और जायज असला बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कसूर और गिरदनवा की मजीद 5 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर इमरान किशोर की सूची हिदायत पर अमल पैरा होते हुए डीएसपी सिटी मोहम्मद यकूब रहमान की सुपरविजन में जुर्म पेशा अपराध के खिलाफ अमा वक्त बसे पुकार है। क्योंकि इंचार्ज लाली अड्डा अल्लाह हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना ए डिवीजन के दूर में जुर्म पेशा अपराध से किसी किस्म की राहत नहीं बरती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सैयद अली जैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। डीपीओ बक्खर राना ताहिर रहमान खान ने सस्ता रमजान बाजार और सिटी बक्खर जहान खान का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सस्ता बाजार इंतजामात का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात को भी चेक किया। डीपीओ बक्कर राना ताहिर रहमान खान ने सस्ता रमजान बाजार सिटी बक्कर और जहान खान का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया और सस्ते बाजार में लगे स्टॉल का भी मायना किया। दुकानदारों को हिदायत जारी की कि खरीदारों को हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखों पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुरीदके के इलाके दकमपुरा मुन्नू आबाद के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद यूनुस की 3 साला बेटी मदीहा को अगवा हुए 4 रोज गुजर गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कमसन बच्ची को तलाश करने में नाकाम। अहले खाना और आबादी के लोगों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। कमसन मदीहा के अगवा की वजह से पूरी आबादी में खौफ और खराश पाया जा रहा है। वालदेन अपने बच्चों को घर से निकालने में मोहतात हो गए हैं। साडे बच्ची जिथों भी लभे सानू लभनी चाहिए है। गरीब आदमी साडे बच्ची लभनी चाहिए। कोई जगह यहाँ नहीं छड़ी, कोई शह नहीं यहाँ छड़ी। इस इलाके का जिम्मेदार खतीब होने के हैसियत से वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि अली खाना की ये बच्ची गुम हुई हमारे इलाके में, तो वो पूरी हमारे साथ तामन करें, हमारी मदद करें। साड़ी वज़ीर आला के अपील है कि साड़ी बच्ची सानू मिल जाए। असी गरीब बंदे हैं, साड़ी बच्ची 4-5 दिन तो नहीं मिल रही। वज़ीर आला हमारी बहन हमें चाहिए, हमारी बहन ढूंढ के दें। बच्ची के वालदेन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आईजी पुलिस नोटिस लें और इनकी बेटी की बाजियाबी को यकीनी बनाने में मदद करें। जनूबी पंजाब का चोलिस्तानी खिता भावलपुर कपास की फसल के लिए मशहूर है। माजी में कपास को मौसमियाती तब्दीली और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से काश्तकार हमेशा नुकसान का सामना करते थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा ज़राअत ने कपास पर तहकीक करके एक ऐसा बीज मुतारिफ करवाया है कि जिस पर पेस्टिसाइड की स्प्रे किए बगैर ये बीमारी असर नहीं करती। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की चोलिस्तानी खिता बहावलपुर कपास की फसल के लिए बहुत मशहूर है। ताहम कपास की फसल पर मौसमियाती तब्दीलियों और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से काश्तकार नहायत नुकसान का सामना करते थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इस मसले के हल निकालने के लिए तहकीक का आगाज़ कर दिया है। इसकी काबिल तरीन और मेहनती टीम ने दिन रात मेहनत करके कपास के एक ऐसे बीज मुतारिफ करवाने में कामयाब हुए हैं जिस पर स्प्रे किए बगैर भी ये बीमारियाँ असर नहीं करती। अब्दुर्रहमान जो इस जामिया के शुबे ज़राअत में लेक्चरार है, वो अपनी काविशों से काफ़ी पुरुमीद है।
यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में हम मेनली जो है वो कॉटन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वीट और राइस जो है उन पे भी काम हो रहा है, लेकिन मेनली जो हमारी अचीवमेंट्स हैं अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, यहाँ पे हमारी 3 वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं, IUB 13, MM58 एंड IUB 222। इस यूनिवर्सिटी में ज़राअत पर तहक़ीक़ करने के लिए एक बेहतरीन लेबॉर्ट्री भी मौजूद है जो जदीद तरीन मशीनरी और सामान से आरास्ता है। हाफिज़ा इशफाक जो शुबे ज़राअत की तालिबा है, वो इस जामिया की तहक़ीक़ी काम पर काफ़ी मुतमईन है। हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग मेजर हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। उन्होंने हमें बताया है कि मतलब प्लांट्स का अगर आपने ब्रीडिंग करवानी है तो किस तरह करवाते हैं। तो हम एक सीड तैयार करवाते हैं, हमारी रिसर्च होती है यहाँ पे वीट पे, कॉटन पे, इस तरह से। और कॉटन पे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ से लोग सीड्स लेके जाते हैं अपनी कॉटन ग्रो करने के लिए। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने कपास पर मुख्तलिफ तजुर्बात और तहक़ीक़ करने के लिए बाकायदा तौर पर ऐसी ग्रीन हाउस बनाई है जहां इस पर तेज़ धूप या सर्दी आसानी से असरअंदाज नहीं होती। जामिया के वाइस चांसलर इंजीनियर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि उनका टीम इलाके को कपास के ज़रिए मालामाल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपके इल्म में है कि ये ख़ित्ता जो है ये कपास की प्रोडक्शन के लिए हमेशा से मशहूर है कि जो इसका क्लाइमेट है वो कॉटन की प्रोडक्शन को सूट करता है। तो कुछ अरसे से पाकिस्तान में कॉटन के एरिया में काफ़ी चैलेंजेस हैं, जहाँ यील्ड जो है वो नीचे जा रही है और कुछ दूसरे थ्रेट्स थे। तो हमारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, स्पेशली डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, उन्होंने कॉटन की कई वैरायटीज़ ऐसी डेवलप की हैं जिनमें एक तो वायरस से प्रोटेक्शन है, दूसरा ये है कि क्रॉप जो है वो तकरीबन 4 वीक कम लेती है मैच्योर होने में, जिसका नेट रिज़ल्ट ये है कि जो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो कपास है पाकिस्तान में बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन ये जो वैरायटीज़ हैं ये 4 हफ्ते पहले मैच्योर हो जाती हैं, और जहाँ पेस्ट का अटैक होने वाला है होता है उस टेम्परेचर से पहले आप अपनी क्रॉप पिक कर सकते हैं। और जो कुछ वैरायटीज़ ऐसी उन्होंने डेवलप की हैं कि जो बहुत वर्टिकली ग्रो करती हैं, और जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो स्टेम के इर्द गिर्द निकलते हैं, तो उससे पर एकड़ जो नंबर ऑफ कॉटन प्लांट्स हैं उनको डबल ट्रिपल किया जा सकता है, जिससे यील्ड जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई अचीव होती है। वतन अजीज़ में ज़राअत रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और पाकिस्तान में 75% लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। अगर माजी में इन फसलों पर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से असरात पड़ते और ज़मींदार महंगे तरीन पेस्टिसाइड ख़रीदने पर मजबूर होते। अब इस जामिया की कोशिशों से ज़मींदारों को इससे निजात मिलेगी और कपास की बेहतरीन फसल इस इलाके में गुर्बत का खात्मा करने में कलीदी किरदार अदा करेगी। गुलाम फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, बहावलपुर। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।